A very good evening, everyone. Is my voice audible? I'm really sorry for the delay. I was not able to connect. I was trying, but I was not able to connect. So, is my voice audible? Is my voice audible? Okay. So Dhavi, जो हेवर्शन कैनाल होती है, that's a part of compact bone, and compact bone long bones में भी हो सकते हैं, short bones में भी हो सकती है. So हेवर्शन canal can be present in any of the canal, in any of the like long bone or short bone. ठीक है, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट बोन का पार्ट है. कॉम्पैक्ट बोन ऐसे कुछ नेसेसरी नहीं है दैट इज प्रेजेंट इन योर लॉन्ग बोन्स. इट कैन आल्सो बी प्रेजेंट इन योर, दोनों में हो सकती है. सो दैट्स व्हाई हेवर्शियन कैनाल कैन बी अ पार्ट ऑफ बोथ लॉन्ग बोन एंड योर शॉर्ट बोन. क्लियर? इज इट क्लियर? Anyone else has any other doubt? Anyone else has any other doubt? Okay, so we will just continue further. I have started with nervous system. In nervous system, I have divided it into two categories, two different categories of nervous system. Nervous system was divided into two categories. Ideally, it was also divided into a third category, but I will discuss it later. So there are two categories. One is called as CNS, which is central nervous system, and second is called as PNS, which is peripheral nervous system. Central nervous system क्या था? Brain plus spinal cord. And peripheral nervous system, all the neurons which are passing through that, they are called as peripheral nervous system. जितनी भी neurons pass होती हैं, वो peripheral nervous system के अंदर आती हैं. अब नेक्स्ट क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स आते हैं. सो न्यूरॉन्स दो चीजें हो सकती है. न्यूरॉन्स कैन ट्रैवल फ्रॉम योर ब्रेन और योर स्पाइनल कॉर्ड टू द बॉडी ऑर्गेन्स. बॉडी ऑर्गेन्स के पास जा सकते हैं. और दूसरा क्या होगा? बॉडी के ऑर्गेन से इट विल मूव टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. So suppose this is your brain and this is your spinal cord. There are the nerves which are like जो यहाँ से ऐसे ऐसे जा रही हैं, जो भी हैं nerves, all the nerves come under peripheral nervous system. There can be two categories. One is called as when this is your organ and the nerve impulse will travel from the organ to your brain, brain or spinal cord, कुछ भी, organ to the brain or spinal cord. And second one would be the one where it is moving from brain or spinal cord to the organ. So when it is moving from brain or spinal cord to the body organ, then it is called as your efferent neurons. ये होती हैं आपकी efferent neurons. And when from organs to the brain or spinal cord, then it is called as afferent neuron. So efferent are the one which are taking from brain to the organ, and afferent are the one which are taking from organ from your brain. एक मिनट brain. हाँ ठीक है. Organ to the brain, that is afferent. ये दो terms clear है सबको? Are these two terms clear to everyone? Are these two terms clear to everyone? Yes or no? Afferent and efferent. Are these two clear to everyone? Afferent, याद करने का तरीका. Efferent जो इफेक्टर ऑर्गेन्स पे लेके जाती है. इफेक्टर ऑर्गेन्स होते हैं. इफेक्टर मतलब जो ऑर्गेन्स है उनको इफेक्टर बोलते हैं. तो जो ऑर्गेन्स पे लेके जा रही है वो इफरेंट, और जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड पे लेके आ रही है दे आर एफरेंट. अब इफरेंट वाली डिवाइडेड इनटू, फर्दर इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. There can be different kind of organs. There can be two different kind of organs or anything. One is ऐसे organs जो voluntary in nature हैं, like your skeletal muscles. Skeletal muscles are voluntary in nature. Whereas ऐसे organs भी होंगे जो involuntary होते हैं.
जैसे कि आपके कार्डियक, जीआईटी और आपके लंग्स सब आपके इनवॉलेंटरी हैं. So the nervous system which is carrying the nervous system in that where it is carrying to the skeletal muscle or voluntary muscle, that is called as somatic nervous system. And the nervous system which involve the involuntary system, that is called as autonomic nervous system. So these are further two categories. One is somatic nervous system and another one is autonomic nervous system. So somatic nervous system and autonomic nervous system. Next, autonomic nervous system is further divided into two categories. One is called as parasympathetic nervous system and second is called as sympathetic nervous system. Sympathetic nervous system. So always remember, skeletal muscles में there is no blood supply like parasympathetic or sympathetic. Whereas in other organs, जो भी बाकी बचे organs हैं, वो सारे के सारे autonomic nervous system आते हैं, इसलिए उसमें parasympathetic भी होता है, sympathetic भी होता है. समझ आई ये चीज आपको? Is it clear to everyone? पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक इतना डेप्थ में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट इसको समझा दूंगी मैं थोड़ा सा इसके बारे में कि ये क्या होते हैं सिस्टम. समझ आया यहाँ तक? इज इट क्लियर और नॉट? इज दिस क्लासिफिकेशन क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? क्या रिपीट करूँ लता? व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट? नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. One is central nervous system and one is peripheral nervous system. Central nervous system contain your brain and spinal cord. Brain and spinal cord is your central nervous system. And the nerves which are going from this area, या यहाँ पे जो receive हो रही हैं, all those nerves will come under peripheral nervous system. अब peripheral nervous system में nerves हैं. Nerves दो कैटेगरी की हो सकती है. एक वो nerve जो आपके organ से आपके CNS पर लेके आ रही है कोई चीज, और दूसरी हो सकती है CNS से आपके ऑर्गन पर लेके जा रही है. तो ऐसी नर्व जो ऑर्गन से CNS पर लेके आती हैं उसे हम बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन, और जो CNS से ऑर्गन पर लेके जाती हैं उसे बोलते हैं इफरेंट न्यूरॉन. जस्ट अ मिनट. हाँ हाँ बता रही हूँ. अरे यार आप चलो. हाँ तो फिर जो आपकी इफरेंट होती है, मतलब एक मिनट दो मुझे. एक हाँ तो इफरेंट न्यूरॉन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू. वन इज वॉलेंटरी ऑर्गन पे जा रहा है या इनवॉलेंटरी ऑर्गन पे जा रहे हैं. वॉलेंटरी ऑर्गन आइडियली एक ही होते हैं विच आर स्केलेटल मसल्स. वहां पे जो नर्वस सिस्टम जाता है वो होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और जो इनवॉलेंटरी पे जाता है वो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. Autonomic nervous system is further divided into two categories. One is parasympathetic and one is sympathetic. To be more precise, autonomic voluntary की है. नहीं नहीं नहीं, autonomic involuntary की है तमन्ना. Voluntary का आपका somatic है, इनवॉलेंट्री का आपका ऑटोनॉमिक है. ठीक है, क्लियर? सही कर लो उसे. वॉलेंट्री का सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, इनवॉलेंट्री का ऑटोनॉमिक है. अब अगर मैं आपको थोड़ा सा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक के बारे में भी बताऊं तो पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक क्या होता है? हमारा एक ऑर्गन है. सिंपैथेटिक मीन्स व्हेन माय बॉडी रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ सिंपैथी. सिंपैथी जब मुझे चाहिए होती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है. मतलब जब एकदम से कोई स्ट्रेस आ गया, एकदम से, ऐसे तीन चीजें बोलते हैं, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट. जब फाइट लड़ने का टाइम आ जाए, फ्लाइट उड़ने का टाइम आ जाए, मतलब ऐसा जब कोई स्ट्रेस आ जाए हमारी बॉडी में, तब हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है. और जब हम रिलैक्सिंग स्टेज पर हैं, आराम से बैठे हुए हैं या सो रहे हैं, तब हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है.
अब मैंने आपको बोला जितने भी इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स है उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। उसमें दो टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आती हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। जब भी मेरा बॉडी बहुत प्रॉब्लम में होगा, स्ट्रेस में होगा कुछ ना कुछ, तो वहां पूरी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, और जब भी मेरी बॉडी रिलैक्सिंग कंडीशन में होगी तो पैरासिम्पैथेटिक में मेरा सिस्टम चला जाएगा। अब कोई मुझे एकदम से, मेरे पीछे डॉग आ गया, अब मेरे को भागना है, मैं स्ट्रेस में आ गई, तो मेरी बॉडी में सिंपैथेटिक सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। और जब मैं सो रही हूँ, रिलैक्सिंग स्टेज पे हूँ, तो मेरी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 99% ऑफ आवर ऑर्गन्स कंटेन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सिर्फ सिंपैथेटिक, सिर्फ आपका सोमैटिक, सिर्फ आपका जो वो है क्या कहते हैं, जो आपकी मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है, सिर्फ वहां पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, उसके अलावा पूरी बॉडी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं जब एकदम से स्ट्रेस आ जाता है तो हमारा जितने भी ऑर्गन्स है वहां पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सप्लाई स्टार्ट हो जाती है, और जब हम रिलैक्सिंग स्टेज पे है तो पैरासिम्पैथेटिक हो जाता है। मुझे एक चीज बताओ, जैसे उसके एग्जाम्पल्स भी बता देती हूँ, तो अभी चलो हॉर्मोन्स पढ़ेंगे तब बताऊंगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस और नो? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? यहाँ तक क्लियर है? इसके अलावा एक और नर्वस सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम। सो मैंने आपको क्या बोला था, नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. One is your central nervous system and second is peripheral nervous system. There is one more nervous system which is called as enteric nervous system, and this nervous system is only present in GIT. GIT में जो आपकी न्यूरॉन्स जा रही हैं वो आपकी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में आएगी? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जीआईटी में ऑटोनॉमिक आएगा कि सोमैटिक आएगा? बताओ जल्दी। जीआईटी में आपका ऑटोनॉमिक आएगा, आपका ऑटोनॉमिक आएगा या आपका सोमैटिक आएगा? पहले मुझे ये चीज बताओ, जीआईटी में ऑटोनॉमिक आएगा या सोमैटिक आएगा? जीआईटी में ऑटोनॉमिक आएगा। बट जीआईटी में ऑटोनॉमिक के साथ साथ एक और नर्वस सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं एंटेरिक नर्वस सिस्टम. एंटेरिक नर्वस सिस्टम is totally it is present in the GIT tract of your body. GIT tract में some enteric nervous system होता है, and sometimes this enteric nervous system is called as a third component होता है आपके नर्वस सिस्टम का. क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? थर्ड कैटेगरी सोमैटिक योर शोर क्यों हो रहा है? ठीक है. So this is about the classification of your nervous system. Next, moving towards the histology of nervous system. What is the histology of nervous system? So in case of histology of nervous system, there are two kind of cells in nervous system. One is called as neurons and second is called as neuroglia. Neuroglia are also called as glial cells. ये सब मैंने पढ़ाया था कल, but let me discuss it again. Neuroglia is also called as glial cells. Glial का मतलब होता है glue, जो glue करके रखता है. So main neurons are the most important and they are the basic structural. Neurons are the basic structural and functional unit of your nervous system. ये क्या करते हैं? ये आपकी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, उसको कैरी करके ब्रेन के पास लेके जाते हैं या स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके जाते हैं, और वापस ब्रेन से सिग्नल आपका ऑर्गन पे लेके आते हैं. सो दीज न्यूरॉन्स आर कंडक्टिंग इन नेचर. ये कंडक्ट करते हैं आपके स्टिमुलस को. स्टिमुलस आया, अभी देखो कैसे होता है. सपोज दिस इज माई ऑर्गन, यहाँ पे एक स्टिमुलस आया. व्हाट इज अ स्टिमुलस? स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस एक ऐसी चीज होती है, मतलब अगर हम स्टिमुलस को एक्सप्लेन करें व्हाट इज स्टिमुलस, सो स्टिमुलस इज अ काइंड ऑफ योर क्या कहते हैं, एक चेंज हुआ आपकी बॉडी में. स्टिमुलस इज अ चेंज इन योर एनवायरमेंट. एक ऐसा चेंज होता है एनवायरमेंट में जो एकदम से हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है. So stimulus is any change in the environment. एक ऐसा change होता है environment में which is strong enough to initiate a action potential.
So write down the full definition of stimulus. Stimulus is any change in the environment, और वो ऐसा change है, इतना strong है that it can initiate a action potential. Now comes the question, what is the action potential? So neurons, पहले हम action potential से पहले पढ़ते हैं. Neurons possess electrical excitability. Neurons का मैंने आपको बताया था, there are three components. One is cell body, one is axon, and third one is your dendrites. तो क्या होता है, आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिसीव होती है. उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे रिसीव होने की वजह से कुछ जैसे कि सोडियम हो सकता है अंदर चला जाए, पोटेशियम बाहर चला जाए. जो केमिकल्स होते हैं ना आपकी बॉडी में, ये सोडियम पोटेशियम जो आयंस होते हैं, ये अंदर बाहर इनका मूवमेंट स्टार्ट होता है. हम वो पढ़ेंगे कि कैसे मूवमेंट स्टार्ट होता है, क्या नहीं होता, कौन सा अंदर जाता है, कौन सा बाहर जाता है. बट जब आपके आयंस अंदर मूवमेंट स्टार्ट जाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, अगर सपोज सोडियम अंदर जाई जा रहा है, तो अंदर क्या हो रहा है, अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा. एंड सिंस वो बाहर से सोडियम सारा अंदर जा रहा है, तो आपका बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. So this is called as इलेक्ट्रिकल चार्ज. एक इलेक्ट्रिकल चार्ज का डेवलपमेंट हो जाना. So जब भी आपकी बॉडी में कोई स्टिमुलस आता है, वो क्या करता है, कुछ चैनल्स ओपन कर देता है, जिसकी वजह से आयंस का मूवमेंट इन और आउट होता है, जिसकी वजह से आपके अगर कुछ आयंस अंदर या बाहर जा रहे हैं, तो एक साइड पर चार्ज हो सकता है नेगेटिव हो जाए और दूसरी साइड पर चार्ज हो जाए पॉजिटिव. तो जब ये चेंजेस इन चार्जेस होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी. सो जब ये इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी स्टार्ट होती है, जनरेट होती है और ये ट्रैवल जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल. So that means neurons possess electrical excitability. Neurons के पास electrical excitability होने के chances होते हैं. What is electrical excitability? Electrical changes होना. Electrical changes हम पढ़ेंगे कैसा होना, पॉजिटिव अंदर होना, नेगेटिव अंदर होना, बट वो भी हम पढ़ेंगे. बट आपका कोई स्टिमुलस आया, उसने क्या किया, उसने यहाँ पर जो एक्सॉन, जो सेल बॉडी था, सेल बॉडी पे उसने कुछ चैनल्स खोल दिए. चैनल्स क्या करते हैं, कोई चैनल सोडियम को अंदर जाने देता है, कोई चैनल सोडियम को बाहर निकालता है, कोई चैनल पोटेशियम को अंदर जाने देता है. तो हम चैनल्स पढ़ेंगे, कौन सा चैनल खुलेगा, कौन सा चैनल बंद होगा. बट जैसे ही कोई स्टिमुलस आता है, आपके कुछ चैनल्स ओपन क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल चार्ज डिफरेंस हो जाता है इनसाइड और आउटसाइड लेयर में. और जब इलेक्ट्रिकल चार्ज डिफरेंस हो जाता है और वो इतना स्ट्रांग होता है, एक ना थ्रेशोल्ड होता है कि एक मिनिमम अगर इतना अचीव हो गया ना, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कि माइनस सपोज 65 मिलीवॉट हो गया, या मैं आपको कुछ वैल्यू बताऊंगी कि यार इस वैल्यू को उसने क्रॉस कर दिया, तो आपका एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगा. एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, वो पूरा इंपल्स आगे की तरफ जनरेट चला जाएगा, बिल्कुल आगे तक जाता जाएगा. So this is called an action potential. That whenever there is a stimulus come, there would be an electrical change in your cell, and if the electrical change is strong enough, इतना strong है that it crosses a threshold value, then what will happen, that electrical impulse will travel to whole of your axon. आया कहाँ पे था, आया था सेल बॉडी पे, बट सेल बॉडी से वो आगे जाएगा नहीं जाएगा, वो डिपेंड करेगा क्या वो थ्रेशोल्ड अचीव हुआ है. अगर थ्रेशोल्ड अचीव हुआ है, तो वो हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा. सो न्यूरॉन्स पोजेस इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी, the ability to respond to a stimulus. The ability to respond to a stimulus. न्यूरॉन के पास इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी होती है और उनके पास एबिलिटी होती है कि वो अपने स्टिमुलस को कन्वर्ट कर सके एक एक्शन पोटेंशियल के अंदर. सो अब स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द एनवायरमेंट, ऐसा चेंज जो इतना स्ट्रांग है कि वो एक्शन पोटेंशियल करा सके. और स्ट्रांग है मतलब वो थ्रेशोल्ड को अचीव कर पा रहा है. सो एक्शन पोटेंशियल is an electrical impulse. Action potential is an electrical impulse that propagate or travel along the plasma membrane of the neuron. ये आपका न्यूरॉन है, ये सेल बॉडी, ये एक्सॉन है. तो जो बाहर की इसकी कवरिंग है, ये पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है ना. स्टिमुलस तो आया था सेल बॉडी पर, बट वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन ट्रैवल कर रहा है. दैट इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल. क्लियर हुआ सबको? What is the meaning of action potential? Is it clear to everyone? Yes or no? देखो, ये मेरा सेल है, this is my cell body,
एंड सेल बॉडी से देयर आर एक्सॉन्स। सेल बॉडी पे क्या होता है, न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी होती है। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी? दैट देयर आर सम चैनल्स इन दिस सेल बॉडी। इस सेल बॉडी में चैनल्स होते हैं। चैनल्स क्या करते हैं, जब ये चैनल सपोज ओपन हो गया तो हो सकता है पोटेशियम अंदर चला जाए, जब ये चैनल क्लोज हो गया तो पोटेशियम का मूवमेंट रुक जाएगा। ऐसे ही हो सकता है सोडियम के चैनल, ऐसे बोलते हैं पोटेशियम चैनल, सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल, थी बहुत सारे चैनल्स होते हैं। सो न्यूरॉन्स के अंदर ये सब चैनल्स होते हैं। जब कोई बाहर से आपकी सेल बॉडी पे कोई स्टिमुलस आएगा, वो क्या करेगा, वो कुछ कुछ चैनल्स को खोल देगा, और जब कुछ कुछ चैनल्स खुलेंगे उसके बाद क्या होगा, कोई आयन अंदर जाएगा, कोई आयन बाहर जाएगा। अगर सपोज सिर्फ और सिर्फ सोडियम अंदर जा रहा है, तो सोडियम जब अंदर जा रहा है तो अंदर का चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव और बाहर का चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। जब ऐसा कुछ इलेक्ट्रिकल चेंजेस हो गए, देखो इलेक्ट्रिकल चेंजेस हुए ना, अभी आपकी न्यूरॉन आगे तक नहीं गई, वो सिर्फ सेल बॉडी पर ही पड़ी है। बट अगर एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड होता है, कितनी वैल्यू, अभी वो हम पढ़ेंगे -60 मिलीवॉल्ट या कोई एक वैल्यू होती है, कि अगर आपकी सेल बॉडी पे इतनी आपकी सेल बॉडी पे इतना अगर आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज हो गया तो क्या होगा, तो एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपके कुछ चेंजेस हुए थे, यहाँ पे आपका बाहर माइनस था, अंदर प्लस था, अब ये सब कुछ आगे की तरफ ट्रैवल होगा पूरी एक्सॉन में। तो जो माइनस बाहर था और अंदर प्लस था वो आगे ट्रैवल होता जाएगा, और जब ये आगे ट्रैवल होता जाएगा तो क्या होगा, लास्ट में हमारे एक्सॉन टर्मिनल होते हैं। एक्सॉन टर्मिनल के बाहर एक छोटे छोटे गोले जैसे शेप में कुछ कुछ होता है, जिसे हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। ये क्या करता है, इसके अंदर आपके बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स स्टोर्ड होते हैं, और जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ तक आएगा तो ये फट जाएगा ये साइनेप्टिक बल्ब, और आपके न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ मीडिया में रिलीज हो जाएंगे। वो जो न्यूरॉन्स होंगे वो अगले सेल को, हाँ साइनेप्टिक वेसल्स, हाँ साइनेप्टिक वेसल्स भी बोल सकते हैं, साइनेप्टिक नॉब भी बोल सकते हैं, दोनों चीजें होती हैं। साइनेप्टिक वेसल्स एंड साइनेप्टिक नॉब आर सेम। सो जब ये साइनेप्टिक नॉब फट जाएगा तो इसमें से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर, अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही न्यूरॉन आपके हाथ से आपके ब्रेन तक जा रहा है, नहीं, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। ऐसे करके एक हुआ, फिर अगला, फिर अगला, ऐसे करके बहुत सारे न्यूरॉन्स का चेन होता है। तो यहाँ पे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे जो इस वाले सेल बॉडी पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे, फिर वो आगे ट्रैवल होगा, अगले साइनेप्टिक नॉब पे रीच हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, वो अगले वाले को करेंगे, तो फाइनली आपका सिग्नल ब्रेन के पास पहुंच जाएगा, और ब्रेन फिर दोबारा कुछ रिस्पॉन्स भेजेगा जो आपके सेल के पास पहुंचेगा। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल इज? नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? बाकी सबको क्लियर है, नहीं क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं सिंपलर, एनर्जी डीजनरेशन नहीं होगा मतलब, एनर्जी डीजनरेशन क्या पूछ रहे हो आप हर्षदीप? व्हाट आर यू आस्किंग? व्हाट आर यू आस्किंग हर्षदीप, क्या पूछ रहे हो आप? ट्रांसफर होने में एनर्जी डेफिनेटली यूज होगा ना, एनर्जी यूज तो होगा ही होगा। डीजनरेशन कुछ नहीं होता, एनर्जी इज यूटिलाइज, यूज होगा। अभी हम जैसे से आगे बढ़ेंगे ना, इसके मैकेनिज्म को अगर हम जब पढ़ेंगे, मैं कल पढ़ाऊंगी इसका मैकेनिज्म पूरा, अभी मैं सिर्फ ब्रीफ ओवरव्यू दे रही हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट अगर आज की क्लास नहीं सुनोगे तो कल की क्लास भी नहीं समझ आएगी, ठीक है? सो दिस इज अबाउट व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल। अब हम थोड़ा सा न्यूरॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूरॉन का ये है सेल बॉडी, ये है एक्सॉन, और मैंने क्या बोला था, एक्सॉन जिस पॉइंट पे सेल बॉडी से कनेक्ट होता है इसे बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। दिस इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक। एंड इसके ऊपर माइलिन हो भी सकती है, माइलिन शीथ, और नहीं भी हो सकती। सो एक्सॉन दो कैटेगरी में होते हैं, वन इज कॉल्ड एज माइलिनेटेड एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज नॉन माइलिनेटेड। दोनों हो सकते हैं। इनके अगर माइलिनेटेड है तो उसके बीच के गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रैनवायर, और जहां पे एक्सॉन खत्म होता है वहां पे आ जाती हैं आपकी साइनेप्टिक टर्मिनल
एंड साइनेप्टिक टर्मिनल को हम यहाँ बोलते हैं दिस इज योर साइनेप्टिक वेसल्स एंड साइनेप्टिक नॉब. सो साइनेप्टिक नॉब और एक्सॉन टर्मिनल भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, एक्सॉन टर्मिनल और साइनेप्टिक नॉब कुछ भी बोल सकते हो. इसके ऊपर आपके डेंड्राइट्स होते हैं. अब ये जो आपका सेल बॉडी, हम सेल बॉडी के बारे में पढ़ते हैं. सेल बॉडी क्या है? सेल बॉडी इज कंटेन अ न्यूक्लियाई. इस सेल बॉडी, क्योंकि सेल ये भी एक सेल ही तो है ना, तो सेल बॉडी है, सेल है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा. तो सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसके बाहर साइटोप्लाज्म सराउंडेड होता है. सेल ही है ना, तो सेल में न्यूक्लियस भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा. बाहर इसके राइबोसोम्स भी पड़े होंगे, बाहर इसका माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, बाहर इसका गोल्गी अपरेटस भी होगा, बाहर इसका लाइसोसोम भी होगा. तो साइट आपकी सेल बॉडी में सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो किसी भी सेल में होते हैं. क्यों? क्योंकि सेल बॉडी इज ऑल्सो अ सेल. अब एक चीज और आती है इसके अंदर, जो इसमें ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था ना मैंने आपको. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है. तो इसमें जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट इन क्लस्टर्स इन योर न्यूरॉन. और किसी सेल में क्लस्टर्स की फॉर्म में नहीं होते, सिर्फ न्यूरॉन्स में होते हैं. और इन क्लस्टर्स को हम बोलते हैं निसल बॉडी एंड निसल. These are called as Nissl body. So what is Nissl body? These are the prominent clusters of rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum के जो clusters होते हैं उसको बोलते हैं हम Nissl bodies. So Nissl bodies are the clusters of rough endoplasmic reticulum. This is about your cell body. अब cell body के ऊपर आपके dendrites होते हैं. डेंड्राइट्स आपके दो चीजें, अभी हम आगे टाइप्स पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे डेंड्राइट्स, मल्टीपल डेंड्राइट्स भी हो सकते हैं या कुछ और भी, सिंगल डेंड्राइट. अभी ना हम पढ़ेंगे आगे कि डेंड्राइट इज ऑफ टू टाइप. एक होगा मल्टीपल डेंड्राइट और दूसरा होगा सिंगल डेंड्राइट. अभी वो पढ़ेंगे कैसे सिंगल होता है, बट अभी के लिए याद रखो दीज आर योर मल्टीपल डेंड्राइट्स. So dendrites are multiple dendrites और usually 99% cases में आपके multiple dendrites ही होते हैं. Multiple dendrites and a single axon. 99% cases में जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं they have multiple dendrites and they have single axon and multiple dendrites. डेंड्राइट्स क्या करते हैं? डेंड्राइट रिसीव योर इन्फॉर्मेशन. ये रिसीविंग पार्ट होते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन का. और रिसीव करने के बाद उसको जो आगे ट्रांसमिटेड कौन करता है? ट्रांसमिशन करता है आपका एक्सॉन. सो एक्सॉन आपका ट्रांसमिशन का काम करेगा. अब क्या होता है, मैंने आपको बोला मैम फंक्शन ऑफ कुछ फंक्शन नहीं है, निसल बॉडी का कुछ फंक्शन नहीं है, बट ये क्लस्टर्स में पड़े होते हैं तो उन्होंने उसको एक नया नाम दे दिया विच इज कॉल्ड एज निसल बॉडी. फंक्शन सेम वही रहेगा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, दैट इज योर प्रोटीन सिंथेसिस. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस. वही काम निसल बॉडीज का भी है, बट इसमें ना आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लस्टर्स में बहुत सारे साथ में दिखते हैं, इसलिए उन्होंने उसको एक प्रोमिनेंट नाम दे दिया विच इज कॉल्ड एज निसल प्रोटीन. अब मैंने आपको बोला था एक्शन इम्पल्स जो होता है आपका एक्शन पोटेंशियल, वो आपका आगे की तरफ ट्रैवल करता है. तो जो स्पीड होती है उसके ट्रैवल करने की वो वेरी करती है. वो 0.5 to 130 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करता है. किसी न्यूरॉन में स्पीड 0.5 मीटर पर सेकेंड भी होगी कि सिर्फ 0.5 मीटर का डिस्टेंस एक सेकेंड में कवर कर रहा है, और किसी में एक्शन पोटेंशियल इतना तेज भाग रहा होगा कि 130 मीटर पर सेकेंड भी होता है. तो हम ये पढ़ेंगे बाद में कि क्या ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वजह से वेरी करता है एक्शन पोटेंशियल का रेट, स्पीड, बट इट लाइज बिटवीन 0.5 to 130 मीटर पर सेकेंड. अब जो आपकी एक्सॉन होती है ना उसकी लेंथ बहुत वेरी करती है. कुछ न्यूरॉन्स में लेंथ सिर्फ फ्यू मिलीमीटर जितनी होती है. कुछ न्यूरॉन्स की जो एक्सॉन होती है वो सिर्फ फ्यू मिलीमीटर की होती है, और कुछ की जो एक्सॉन्स होती है वो 1 मीटर जितनी भी बड़ी होती है. सो द लेंथ ऑफ एक्सॉन विल लाई फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर अप टू अ मीटर और इवन मोर देन दैट. सो आपका ये साइज, आपकी जो न्यूरॉन है, जो एक्सॉन है, उसका साइज ये होता है. ये पढ़ लिया हमने. व्हाट ऑल, यहाँ तक समझ आया सबको? सेल बॉडी के बारे में समझ आया, डेंड्राइट्स के बारे में सबको समझ आया? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? इज इट क्लियर और नॉट? इफ इट इज क्लियर देन आई विल मूव टुवर्ड्स द एक्सॉन. एक्सॉन के बारे में फिर हम पढ़ते हैं. इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर. फिर आता है एक्सॉन. एक्सॉन में क्या होता है? एक्सॉन में भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं.
एक्सॉन में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। एक्सॉन्स में आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, आपके ऐसे मूवमेंट में हेल्प करती हैं। और इसमें आपके न्यूरोफिब्रिल्स भी होते हैं। इन सब के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स मूवमेंट में हेल्प करते हैं। न्यूरोफाइब्रल्स आपकी नर्व पोटेंशियल को, एक्शन पोटेंशियल को आगे ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। ये सब चीजें होती हैं। बट यहाँ पे एक्सॉन में आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते हैं। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा मतलब यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। सो प्रोटीन इज सिंथेसाइज ओनली इन योर सेल बॉडीज, नॉट इन योर एक्सॉन। क्यों? क्योंकि वहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते। अब एक्सॉन के अंदर भी तो साइटोप्लाज्म होगा ना, जैसे सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म था वैसे एक्सॉन में भी साइटोप्लाज्म होगा। लेकिन एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। एक्सोप्लाज्म क्या है? इट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ योर एक्सॉन। एक्सॉन का साइटोप्लाज्म एक्सोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सेल का प्लाज्म and exoplasm is the cytoplasm of an axon. and इसकी जो मेम्ब्रेन है that is cell membrane only, but इस मेम्ब्रेन का भी एक स्पेसिफिक नाम होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सोलेमा. This is called as exolema. So these are the terminologies for your axon. Axon का plasma, exoplasm, and axon की cell membrane is your exolema. Clear है यहाँ तक? Is it clear till this point? Is it clear or not? Is it clear or not? यहां तक क्लियर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ योर न्यूरॉन। न्यूरॉन कैसा दिखता है वो हमने पढ़ लिया। अब हमें न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन पढ़नी है। वी हैव टू स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन दो टाइप से की जाती है, एक हम पढ़ चुके हैं, दूसरे हम भी पढ़ते हैं। तो न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन दो तरीकों से डिवाइड की जाती है। एक बोलते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन एंड दूसरा होता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। According to the structural classification, neurons are divided into three categories. One is called as multipolar neuron. Second is called as bipolar neuron. And third is called as unipolar neuron. ये structural classification है आपकी न्यूरॉन की। And functional classification क्या होती है आपकी न्यूरॉन की? That is divided into afferent neuron. बताया था ना एफरेंट न्यूरॉन। दूसरा होता है आपका इफरेंट न्यूरॉन, एंड एक और होता है जिसे हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन सिंपल ऐसे न्यूरॉन जहां पे दोनों होते हैं, जहां पे एफरेंट भी और इफरेंट का कॉम्बिनेशन होता है, बताऊंगी। तो एफरेंट कौन से थे? जो आपके ऑर्गन से ब्रेन पर या स्पाइनल कॉर्ड पे जा रहे हैं। इफरेंट कौन से थे? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आपके ऑर्गन पर जा रहे हैं। एफरेंट न्यूरॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरॉन। Afferent neuron is also called as sensory neuron. Efferent neuron is also called as motor neuron. And interneuron is also called as association neuron. Clear हुआ classification? फिर बताती हूँ what are all these things. Is the classification clear to everyone? Is this classification clear or not? Is this classification clear? Clear. So we will just understand it one by one. According to structural, first is called as multipolar. मल्टीपोलर नाम से ही समझ आ रहा है, मल्टीपल प्रोसेसेस हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन इज द न्यूरॉन वेयर देयर आर मल्टीपल processes. What are processes? In case of multipolar neuron, there are many dendrites are present, but there is single axon is there. So multipolar neuron have multiple processes. ये जो एक्सॉन है, डेंड्राइट है, ये सब प्रोसेसेस ही है। मतलब ये आपकी कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ एक्सटेंशन है, और यू कैन सी मल्टीपल एक्सटेंशंस
सो मल्टीपल एक्सटेंशन में डेंड्राइट्स आपके बहुत सारे होते हैं और आपका एक्सॉन सिंगल एक्सॉन होता है. And this is the neuron. These multipolar neuron are those neuron which are mostly present in your brain or spinal cord के around present होते हैं. दिखते कैसे हैं जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं? सेल बॉडी है, एक एक्सॉन है, ये एक्सॉन टर्मिनल है और इसके ऊपर मल्टीपल डेंड्राइट्स प्रेजेंट है. So this is your multipolar neuron which is present maximally in your body. Second is called as bipolar neuron. Bipolar neuron मतलब दो processes हैं. दो processes मतलब एक डेंड्राइट और एक ही एक्सॉन है. अभी हमें कैसे पता चलेगा एक डेंड्राइट एक एक्सॉन? देखो, दिस इज योर सेल बॉडी. मल्टीपल न्यूरॉन का कोई एग्जाम्पल नहीं है. यू विल से मोस्ट न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स. Most of the neurons in your brain and spinal cord are multipolar. हम बाइपोलर और यूनिपोलर के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, कुछ है. उसके अलावा जो भी न्यूरॉन है बॉडी में वो सारे के सारे आपके मल्टीपोलर में आ जाएंगे. ठीक है. तो जो एग्जाम्पल्स इन दोनों में आएंगे ना, बाइपोलर और यूनिपोलर में, उनको छोड़ के बाकी सब कुछ है मल्टीपोलर. सो अब बाइपोलर कैसा दिखता है? दिस इज योर सेल बॉडी. ये सेल बॉडी का न्यूक्लियस है. यहां से एक आती है एक्सॉन और ये है एक्सॉन के टर्मिनल. अब ये आपकी माइलिनेटेड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. दिस इज योर एक्सॉन. तो ये हो गया आपका वन प्रोसेस विच इज एक्सॉन. अभी क्या होगा, यहां से ना एक पतली सी लेयर निकलती है और इस लेयर के ऊपर बहुत सारी डेंड्राइट्स होती हैं. बट जो आपकी सेल बॉडी से निकला वो तो सिर्फ एक ही निकला ना, इसीलिए हमने बोल दिया देयर इज वन डेंड्राइट एंड वन एक्सॉन. बिकॉज सेल बॉडी से एक ही डेंड्राइट निकल रहा है और एक ही एक्सॉन निकल रहा है. चाहे वो एक्सटेंशन आगे जाके बहुत सारे डेंड्राइट्स में कन्वर्ट हो रही है, बट हियर इट इज जस्ट टू ब्रांचेस. वन ब्रांच ये ब्रांच एंड दूसरी ब्रांच ये ब्रांच. समझ आया व्हाई इट इज बाइपोलर? इज इट क्लियर और नॉट? So what I will say, bipolar neurons have two processes extended from a cell body.